डॉक्टरों के हड़ताल से उड़ी ममता बनर्जी की नींद। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, नारे बंद करके मुझे 5 मिनट सुन लीजिए प्लीज। আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি। আমি আবার আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলুন, কথা বলে সিদ্ধান্ত নিন এবং আপনারা কাজে ফিরুন। আপনারা আমার ভাই বোন, এটুকু জেনে রাখবেন আপনাদের জন্য সিম্প্যাথি, আমি কোনো অ্যাকশন নেব না। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर का हत्या और रेप का मामला अब इस कदर आगे बढ़ चुका है कि डॉक्टर्स ना सुप्रीम कोर्ट के सुनने के बाद भी नौकरी पर लौटे और ना ही तो ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद। और अब डॉक्टरों के सामने ममता बनर्जी पहुंच गई हैं गिड़गिड़ाने। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार और प्रशासन की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और अब डॉक्टरों के प्रदर्शन ने ममता बनर्जी की नींद उड़ाकर रख दी है और इसीलिए ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के बीच पहुंची और उनसे करने लगी मिन्नतें। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें, आज ही डॉक्टर जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़िता के परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और इसी बीच ममता बनर्जी अपनी अपील करते हुए कहीं वहां पहुंची और कहा कि मैं यहां पर मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि दीदी की हैसियत से आई हूं। आप थोड़ा यानी कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांत रहकर जो है वो मेरी 5 मिनट बात सुन लीजिए। जो नारेबाजी लगा रहे हैं उसे बंद कर मेरी 5 मिनट बात सुन लीजिए। देखिए, एक तरफ तो ममता बनर्जी जो अभी तक प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर जेल में डाल रही थी, पर आज वही ममता बनर्जी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी और डॉक्टरों के सामने आज गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से कहा कि मैं अनुरोध कर रही हूं, काम पर लौट आइए। बारिश के बीच सड़क पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি। আমি আবার আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলুন, কথা বলে সিদ্ধান্ত নিন এবং আপনারা কাজে ফিরুন। আপনারা আমার ভাই বোন, এটুকু জেনে রাখবেন আপনাদের জন্য সিম্প্যাথি, আমি কোনো অ্যাকশন নেব না। আমি ইউপি পুলিশ নই, ওরা এসমা জারি করেছিল, ওরা 6 মাস মনে রাখবেন স্ট্রাইক র্যালি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি এসব করব না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনো ডাক্তারের বিরুদ্ধে, কোনো কারো বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেবার আমি বিরুদ্ধে। আমি জানি আপনারা অনেক কাজ করেন, মহৎ কাজ করেন। আপনাদের ছাড়া সিনিয়ররা, যেটা কিডনি ডিপার্টমেন্টে মারা গেছে, ক্যাথলেটও চেঞ্জ করতে পারে না, ক্যাথিটাল চেঞ্জ করতে পারে না, সেই জন্য আপনাদের আমাদের প্রয়োজন। আমি আপনাদের বলবো আপনারা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। আর যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি যখন আপনাদের ধর্ণা মঞ্চে আসতে পেরেছি আপনাদের একজন সহযোদ্ধা হিসেবে, তখন মনে রাখবেন যে আমি আপনাদের, যদি আপনারা বিশ্বাস ভরসা রাখেন, বাদ বাকিটাও মনে রাখবেন। আমি আস্তে আস্তে করে, একদিনে তো সব হয় না, করতেও সময় লাগে, আমাকে একটু সময় দিন। আমি নিশ্চয়ই সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আমি দুর্নীতির কোনো একটা টেন্ডার কেস আজ পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি। কোন রোগী কল্যাণ সমিতি কি কাজ করে এটা আমি জানি না, এগুলো আমার আন্ডারে আসে না। তাও বলি, যদি আপনাদের কোনো কমপ্লেন থাকে, কমপ্লেনের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করব। এমনিতে বিনা কারণে কাউকে সাজা দেওয়া যায় না। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় আমি নিশ্চয়ই সাজা দেব। আর একটা কথা, সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে, মনে রাখবেন 17 তারিখেও ডেট আছে। আমি চাই না আপনাদের কোনো ক্ষতি হোক। আপনাদের দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি,
আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসাবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ এল্ডার সিস্টার এবং আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী এবং সমসাথী, তাহলে আপনাদের অনুরোধ করব আমার কথা শুনুন। আগেও আপনাদের সমস্যা আমি সমাধান করেছি এবং আবার আমি করবার চেষ্টা করব, আমাকে একটু সময় দিন। ভালো থাকুন, सुस्त ठाकुर। चिकित्सकों ने हमें न्याय दिलाने के नारे लगाए और आपके लिए बता दें कि कई दिनों से ये तमाम डॉक्टर जो हैं वो नारे पर बैठे हैं, जो कि ममता बनर्जी से भी पहले मुलाकात कर चुके हैं और मीटिंग भी ममता बनर्जी ने की, पर अब तक कोई हल जो है वो नहीं निकल पाया है। और इसीलिए आज फिर एक बार ममता बनर्जी डॉक्टरों को मनाने के लिए कलकत्ता के सॉल्ट लेक में स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे तमाम डॉक्टरों से मिलने पहुंची। इस दौरान आंदोलन कर रहे डॉक्टरों से ममता बनर्जी ने काम पर लौटने की अपील की है और कहा है कि मैं यानी कि आप लोगों की जो मांगे हैं मैं उस पर सारा ध्यान दूंगी, आपकी जो मांग है उन पर अमल किया जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी, मैं आपका दर्द समझती हूं, मुझे अपने पद की चिंता नहीं है। और इसी के साथ ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप लोगों का मेरे पद से कहीं ना कहीं अधिक है, यानी कि आप लोगों का जो दर्द है वो मेरे पद से कहीं अधिक है। मैं खुद यहाँ आंदोलन करके पहुंची हूँ, इसीलिए मुझे आपका दर्द पता है। आज ममता बनर्जी को अपना आंदोलन याद आ रहा है, आज वो डॉक्टर्स को मनाने के लिए अपनी कहानी जो है वो सुना रही हैं। पर देखिए अभी तक जो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आंदोलनकारियों के साथ किया है, जिस तरीके से उन्हें जेल में डाला गया है, जिस तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, वाटर कैनन से पानी फेंका गया है और तमाम हरकतें आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में गुंडों के द्वारा की गई, तोड़फोड़ की गई और उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। आज ये तमाम चीजें जो हैं वो जूनियर डॉक्टर्स नहीं भूले हैं और एक यही बड़ा कारण है कि तमाम मिन्नतें करने के बावजूद भी डॉक्टर्स आज अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर अमल होना चाहिए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब जब ममता बनर्जी सरकार और प्रशासन की किरकिरी हो रही है कि जब डॉक्टर्स अपने काम पर नहीं लौट रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो ममता बनर्जी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब ममता बनर्जी जो हैं वो डॉक्टर्स को मनाने के लिए पहुंची हैं और उनके सामने गिड़गिड़ा कर दिखा रही हैं और ये बता रही हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन के चलते ममता बनर्जी की नींद जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है। और देखिए ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि मैं आपकी हर मांग पर गौर करूंगी, अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी, संकट को हल करने के लिए ये मेरा आखिरी प्रयास है। और इसी दौरान उन्होंने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के रोगी कल्याण समिति को भंग करने की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक चर्चा नहीं हो जाती है मैं अपनी मांगों को लेकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो जल्दी से जल्दी न्याय की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ये मुद्दा कहीं ना कहीं दबा और डॉक्टर्स अपने काम पर लौट जाते हैं तो क्या गारंटी है कि ममता बनर्जी डॉक्टर जो तमाम आज प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगों पर अमल करेंगी। और इसीलिए आज जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक प्रशासन ने समर्थन नहीं किया, पुलिस ने समर्थन नहीं किया और सरकार से सवाल पूछने वाले स्टूडेंट्स को भी जेल में डाला गया है। और आज ये डॉक्टर्स अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो देखिए इन्हीं तमाम लोगों को कुछ दिन पहले अनुमति नहीं दी जा रही थी प्रशासन और पुलिस की तरफ से प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने भी अब ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुकांता मजूमदार।
आज ममता बनर्जी ने 2 लाख रुपया हर्जाना की भी घोषणा की है। मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि आप पिछले साल इसी महीने में कितने लोग मारे गए थे, इसका आप ब्यौरा निकालें। तब आपने की इसलिए लोगों को पैसा नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया। अगर आज लोग मर रहे हैं उसका मुआवजा आप दे रहे हैं, और उस समय लोग मरे थे उसको मुआवजा आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आज सवाल उठता है। आज जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे है, लेकिन सारे सीनियर डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। तो आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं जनता को। आप कोशिश करें जनता को उस्काने के लिए डॉक्टरों के खिलाफ। टीएमसी की तरफ से एक ऑडियो रिलीज किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर्स का जो कर्तव्य है उसमें किसी तरह का हमला या कोई बड़ी साजिश नहीं। देखिए, जो ऑडियो कुणाल घोष ने निकाला, सबसे पहला सवाल ये है कि कुणाल घोष के पास ये रिकॉर्डिंग कैसे पहुंचा? हमारे डीजीपी बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं पहुंचता, सीआईडी के पास नहीं पहुंचता, पुलिस के पास नहीं पहुंचता, कुणाल घोष के पास पहुंच जाता है। तो कुणाल घोष को पार्टी का स्पोक्स पर्सन छोड़ के रॉ का एजेंट करके पाकिस्तान भेजना चाहिए उनको। एक और वीडियो उन्होंने रिलीज किया है जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बीजेपी ऑफिस में बैठे हैं। उनका सवाल है कि उन्होंने क्या कर रहे हैं। नहीं, रिलीज की भी कुछ बात नहीं है। आप जाइए, उन्होंने ये ओपन एंड शॉर्ट केस है। उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि वॉशरूम यूज करेंगे, तो रास्ते में वॉशरूम जाएंगे क्या? हमने अलाउ किया। कुणाल घोष को भी अगर वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी हमारे पार्टी ऑफिस के सामने, तो हम इनकार नहीं करेंगे। ही इज ऑल्सो वेलकम टू यूज आवर वॉशरूम। शुभस्य शीघ्रम, जितना जल्दी शुभ काम हो बंगाल के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है। देखिए, डॉक्टर्स लोगों को मैं बोलूंगा कि बीजेपी की कोई भी नेता को, शुभेंदु अधिकारी हमारे विरोधी दल नेता है, एलओपी है, कोई भी नेता को डॉक्टर्स के आंदोलन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अगर हेल्प मांगते हैं हम हेल्प करते हैं। जैसे उन्होंने वॉशरूम मांगा, वॉशरूम दिया हमने, और कुछ नहीं। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा है। कल सीएम के ऑफिस जाने के वक्त एक नक्सलाइट लीडर वहां पे खड़ा होकर उनके मंच से भाषण दिया, तो वो बोल रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल है। तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि नक्सलाइट लीडर हाउ कैन ही एबल टू डिलीवर द लेक्चर फ्रॉम द डायस? इज ही ए नॉन पॉलिटिकल एंटिटी? वो क्या नॉन पॉलिटिकल आदमी है क्या? आपने सुना कि सीधे तौर पर सुकांता मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी आज किस तरीके से ये तमाम बातें कहकर लोगों को डॉक्टर्स के खिलाफ भड़काने की बात कर रही हैं। खैर, तस्वीर आज पश्चिम बंगाल की सभी के सामने है, और डॉक्टर्स की बात करें तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि देश भर से अब यही आवाज आ रही है कि जल्द से जल्द पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और अब अपनी कुर्सी, सरकार और राज्य को खतरे में आते देख ममता बनर्जी को डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। जिस तरीके की तस्वीरें अब धरना प्रदर्शन जहां पर चल रहा है वहां से आ रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।